Good morning, student. Today I am going to explain you the first chapter of history from this PDF which have been provided to you. And the first lesson is the first war of independence. As you know, there were the rule of Britishers in earlier times, and the Britishers exploited in Indian people in so many ways that they all come together and they form a revolt. And the first expression of organized resistance was the revolt of 1857. मीन्स सारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे वॉर लड़ी, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट वॉर थी वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी. एंड इट बिगेन एज द रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉयज ऑफ द कंपनीज आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मैसेज. सो इट स्टार्टेड मीन्स एक सिपॉयज ने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, बट आफ्टर सम टाइम मैसिव पीपल जॉइन टुगेदर इन दिस रिवॉल्ट. एंड द फर्स्ट मार्टर ऑफ द रिवॉल्ट वॉज मंगल पांडे. जो फर्स्ट मार्टर इस रिवॉल्ट का था वो मंगल पांडे था, जिसने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था. एंड सम ऑफ द अदर रिबेलियंस एंड लीडर्स वर रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह, नाना साहेब, तात्या टोपे एंड हजरत महल एट्सेट्रा. Causes of the war. There were so many causes which led to the first war of independence, and these causes are political, social, economical, military and religious causes. So the first one is political causes. So what were the political causes that led to the first war of independence? So in the Britishers had made so many policies, like policy to annex the Indian cities. So one of these policies is doctrine of lapse. So what's the doctrine of lapse? According to this doctrine, if a ruler died without an heir to succeed him, his adopted son could neither inherit the throne nor the title. Means ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बनाया, जिसमें ये रूल था कि अगर कोई किंग की डेथ हो जाती है तो उसने अगर किसी को अडॉप्ट किया है तो वो अडॉप्ट किया हुआ सन उसके प्लेस को नहीं ले सकता है. मीन्स ही कांट बिकम द किंग इन प्लेस ऑफ हिम. And in such cases the state was to be annexed to the British, and इस केस में वो स्टेट डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है. And this annexation of Awadh by Lord Dalhousie on the pretext of maladministration left thousands of noble officials, retainers and soldiers jobless. ये एनेक्सेशन किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने. एंड इस एनेक्सेशन की वजह से लॉर्ड डलहौजी ने इस रूल को फॉलो करते हुए अवध को एनेक्स्ड करा, और इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल, ऑफिशियल, रिटेनर, सोल्जर्स, they had lost their job, and so they became rebellious. And economic causes. In economic causes, rural areas, peasants and zamindar resented the heavy taxes on the land and the stringent methods of revenue collection followed by the company. Means ब्रिटिशर्स ने रूरल एरियाज़ में पीजेंट से, ज़मींदार से, सबसे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस वसूल किया ज़मीन पर, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा. और द इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन बाय द ब्रिटिश एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय स्प्रेड रिसेंटमेंट अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल. British were interested in making money, so they forced the farmer of Bihar to grow those crops which they ordered. Means उन्होंने सारे पीजेंट से, सारे फार्मर्स को ये ऑर्डर किया कि जो वो ऑर्डर करेंगे क्रॉप्स को, क्रॉप्स के
प्रोडक्ट के लिए वो ही क्रॉप वो ग्रो करेंगे, उसके अलावा कोई भी क्रॉप वो ग्रो नहीं कर सकते. So in this way they have exploited all the peasants and zamindars, and they have exploited the Indians economy. So all the peoples became rebellious. Military causes. The revolt of 1857 was mainly known as Sepoy Mutiny. Means this revolt was the reason of Sepoy rebellion. मीन्स एक सिपाही ने ही इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था. सो इस वजह से इसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है. सो मिलिट्री कॉजेस, देयर वेयर so many sepoys which were under the Britishers rule, and they were helping Britishers in every method as they asked them to do so. But in spite of all these, they do partiality with them. इन ब्रिटिशर्स के आर्मी में मोस्टली इंडियन सिपाहीज थे, लेकिन उसके बाद भी वो इंडियंस आर्मी के साथ पार्शियलिटी करते थे. उनको वो रैंक, वो ओहदा, वो सैलरी नहीं दी जाती थी जो ब्रिटिशर्स सिपाहीज को दी जाती थी. सो ये भी एक रीज़न था जिसने लोगों को इस रिवॉल्ट के लिए प्रोवोक किया. And the main military causes was that a new rifle infield was introduced, and a rumor spread that these cartridges were greased with fats of cows and pigs, and the covering of these cartridges had to bite off before loading the gun. So the Hindu regards cow as holy and the Muslim regards pigs as unclean. The rumor hurt the sentiments of the soldier. उस वक्त एक न्यू राइफ़ल इंट्रोड्यूस हुई और उस वक्त ये रूमर स्प्रेड हुई कि उसके कार्ट्रिजेस में पिग और काऊ के फैट ग्रीस्ड किए हुए हैं, और उस कार्ट्रिज को गन पे लोड करने से पहले सिपाहीज़ को दांत से बाइट करना पड़ता था. तो ये रूमर स्प्रेड होने के बाद उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, क्योंकि हिंदूज़ के लिए काऊ एक होली एनिमल है और वो इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि उसको दांत से बाइट किया जाए, और मुस्लिम्स के लिए पिग अनक्लीन है. सो मुस्लिम भी इस चीज़ को नहीं पसंद करते कि पिग्स के फैट को मुंह में टच किया जाए. So these are the military causes which led to the first war of independence. Religious causes. At that time, Britishers brought several changes which affect the religious traditions of the people. Britishers ने बहुत सारे changes किए जिसके वजह से लोगों के religious feeling hurt हुई. So an act in 1850 changed the Hindu law of inheritance. At that time there was a law among Hindus that if a person convert himself into Christianity, then he would not be able to इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़. मीन्स उस वक्त ये हिंदू लॉ था, अगर कोई भी अपने रिलीजन को चेंज करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा तो उसको उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी नहीं मिलेगा. लेकिन 1850 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट को लाया और जिसमें ये चेंज किया कि अगर कोई भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा तब भी उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा मिलेगा. People were convinced that the government was planning to convert Indians to Christianity. लोगों में ये डर होने लगा कि ब्रिटिशर्स उनके रिलीजन्स को चेंज करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं. People were so threatened that even the abolitions of practices like sati and remarriage of widow, they took them as the ब्रिटिशर्स पॉलिसी. मीन्स उस वक्त सती प्रैक्टिस को बैन किया गया और विडो के रीमैरिज के लिए लॉ पास हुए. तो ये सब इन रियलिटी इनफैक्ट राजा राम मोहन राय और
अदर इंडियन रिफॉर्मर्स के ने किया, लेकिन लोगों में ये थिंकिंग होने लगी कि ये सब भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनके रिलीजन्स को चेंज करने के लिए। In 1856, Lord Canning issued the General Services Enlistment Act। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट इशू किया जिसमें ये कंपलसरी हो गया कि सिपॉयज़ को ब्रिटिशर्स को सर्व करने के लिए सी को क्रॉस करना पड़ेगा। एट दैट टाइम हिंदूज़ की ये लॉ था कि सी को क्रॉस करना उनके लिए सही नहीं माना जाता था, इट वॉज प्रोहिबिटेड। बट आफ्टर दिस act was issued, it was made compulsory to cross the sea, which hurt the Hindus' religious feeling. So all these causes combinedly led to the first war of independence। मेन इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वॉर सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुई थी और इसको मंगल पांडे नाम के रिबेलियन ने स्टार्ट किया था। एंड इसके बाद ये वहाँ से रिबेलियंस मार्च करके दिल्ली में आए। In Delhi, the mutineers were joined by the Delhi sepoys and the city's name came under their control. When they came from Meerut to Delhi, they were joined by the Delhi sepoys. जब रेबेलियंस मेरठ से दिल्ली आए तो वहाँ पर उनको दिल्ली सिपॉयज़ ने ज्वाइन किया और वो सिटी उनके अंडर में आ गई और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना एम्परर माना। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र वॉज ओल्ड एंड ही कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप टू द सिपॉयज़। बहादुर शाह ज़फ़र ओल्ड हो चुके थे और वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाए और ब्रिटिशर्स ने उनको डिफीट किया और दिल्ली को ऑक्यूपाइड कर लिया और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को कैप्चर करके रंगून में डिपोर्ट कर दिया, वेयर ही डाइड इन 1862। दस एंडेड द एम्पेरियल डायनेस्टी ऑफ द मुग़ल। सो इस तरह मुग़ल डायनेस्टी एंड हो गई। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह ज़फ़र को भी कैप्चर कर लिया और उनके दोनों बेटों को शॉट डेड कर दिया।